हाय दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। आज है हमारे साथ कर्मा कॉलिंग के प्रोड्यूसर्स आशुतोष शाह और ताहिर शब्बीर। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। हेलो जय। कैसे हो आप दोनों? कड़क। सुपर्ब। कर्मा कॉलिंग के बारे में हमें जानना है पहले। तो कैसे हुआ ये, कब हुआ, कब, कितने दिन से चल रहा था ये, कितने सालों से चल रहा था? So, Karma Calling has been one of our most passionate projects. Karma Calling एक ऐसा project है जो actually it's almost this year we are celebrating a decade of our company. तो 10 साल पहले it was our project through which we started the company. You know, तभी OTTs थे नहीं. It was more of television was going through a completely overhaul in terms of they were experimenting with limited episode series, more cinematic, shows बना रहे थे वो लोग. So तभी रुचि जो हमारी partner है of RAT. So Ruchi came up with this idea 10 years back to us, saying that I want to make this show, based on this American show called Revenge. It is an ABC show का adaptation, like जो हम लोग ने किया है. And we both got really excited with this, and that started the journey of RAT, तभी. And the only caveat over here was कि हमें बनाना था with the rights, with the official rights. And वो rights लेने के चक्कर में वो उस time पे वो show बन नहीं पाया. And finally it was always there as our number one wish list, number one priority in every other things which we were doing. Because we also did a lot of other things then in the last 10 years. Yeah. So Karma Calling की journey वो रही है. And जब finally Disney Hotstar हो गया and Disney had the rights. So Gaurav Banerjee, who's of Hotstar, and he was very kind, and we just reached out to him and saying कि अब तो मतलब rights भी आ गए हैं, सब कुछ हो चुका है. So why not do this story? Let's make this. And he was sweet enough, to say let's make this happen. He believed in our passion. He believed in all the hard work which had gone in. So he said, let's do this. How you both of them came up with the idea of production, or you're producing things? यार हम लोग तो Together. मतलब बचपन से ही साथ में थे. ये शक्ल से लगता नहीं है पर थोड़ा बड़ा है मुझसे. तो हम लोग जब कॉलेज में मिले हमने सोचा हम लोग का जो सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी है बहुत सिमिलर है. सो वी स्टार्टेड टू, जब लोग स्टूडेंट स्टडी करते थे हम लोग क्लास में नीचे बैठ के स्क्रिप्ट लिखते थे. सो वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नैक्सलिज्म. We made a film called 1743 but then he decided to go make some other film, Postbox. Yeah. Some terrible film he made. No, it was good film. So हम लोग, हमारी जर्नी तब से ही शुरू हो गई थी. और तब पता नहीं था प्रोड्यूसिंग क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है. हम when you start off as filmmakers you do everything यार. So we were producing, directing everything ourselves. Then when we got into cinema, when we worked with Sudhir Mishra ji, जब हमको उन्होंने उठाया कॉलेज में से, so उनके वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप AD हो क्या हो, आपको ट्रेनिंग हर चीज़ की दी जाती है. Which is why so that our schooling was very like कड़क when it came to direction, producing. So हमको दूसरी पिक्चर पे हमको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना दिया. हम लोग सेकेंड यूनिट डायरेक्टर भी थे. तो वी इमेजिन बीइंग सेकेंड यूनिट डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन द सेम फिल्म. सो वी नेवर, हम लोग अंतर समझ ही नहीं पाए. हमको लगता था कि फिल्म बनानी है, हम कैसे भी बनाएंगे. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. एंड ऑल्सो व्हेन यू वर्कड इनफ फॉर दिस लॉन्ग. हाँ आशुतोष खैर ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वो करता है बिकॉज रास्ते में फिर मैं एक्टिंग में भी एक्टिंग करने लगा. सो प्रोडक्शन डायरेक्शन का जो जिम्मा है वो आशुतोष ज़्यादा लेता है. स्पेशली प्रोड्यूसिंग RAT फिल्म का बोझ आशुतोष उठाता है. बट अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ तो वो कैसे मैनेज करते थे बजट्स एंड ऑल? ही इज गुजराती. It's in his gene. To make money. Yeah. No, make money. so basically जो आपने कहा ना कि how to make money, so that is the last thing which we think about. Yeah. Because frankly speaking, I feel our filmmaking is also an art, right? And producing, everybody equates it, जैसे आप अभी कह रहे हैं, to money and to Excel sheet. So I would like to say that like we are the non-Excel sheet producers, and we like to push the boundaries in terms of storytelling. So अब वो जो होता है ना कि बहुत बार you want to do certain things, you need to do that value add, okay, and not necessarily that it only comes from money. मतलब I think the biggest directors who you meet, they would also say that even if they have the biggest budgets, yet they are falling short of budgets, right? So वो हमेशा it is always a 35 mm, like a 16 mm kind of a shot. Yes. And then by the time it goes in. So I think
the money, it has to be, we try to not go into losses, not do a loss making thing, because that's basic, right? You know, like आप कुछ भी करो life में, and if you want it to flourish, if you want it to work, then how can it be something ke where, you know, it's not been commercial in a certain way, you know? But that doesn't mean that you see everything from a business point of view. So first, because we are telling stories where we have to be a little bit pure, non-financial, at least in the inception stage, where ये बताना है. फिर everything, the logistics and all of it, and I think the planning is very important. कि अगर आप prep करोगे, सही से plan करोगे, you'll have a very good crew, then a lot of things are taken care of. And if I ask what's the role of producer? अगर कोई मूवी बन रही है और उसमें एक प्रोड्यूसर है, तो क्या पैसा लगाना ही उनका काम है, या they can interfere into director's thing or something like that? So I think producer is also an enabler. He's also a creator, and again, you know, just to put money is the last thing. Producer is the guy who's producing it. Like, so while the director is the captain of the ship, but वो ship चलाने के लिए जो पूरी टीम लगती है, जो शिप लेके आता है वो प्रोड्यूसर है. you know, वो प्रोड्यूसर है. मतलब you know, like आप कैप्टन को लेके आओगे, बट कैप्टन आके हार्बर में रुक जाएगा ना कि भाई जहाज चप्पू चलाएगा वो. चलाना क्या है, you know, वो तो बताओ. या मैं चला सकता हूँ टाइटैनिक को भी, मतलब मैं डूबने से बचा सकता हूँ, बट उसके लिए जो भी होता है, सो आई थिंक हम साधन प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज देयर. एंड और इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज इंटरफेरेंस तभी होती है ना जब कोई डायरेक्टर प्रॉब्लमेटिक हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो. हमारे सेट पे तो ऐसा कुछ होता नहीं. हमारे नसीब से हमारे डायरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं. लकीली ऑल द डायरेक्टर्स हु वी वर्कड विद, दे हैव बीन वेरी काइंड, एंड एक दो को छोड़ के जो उसका नाम नहीं ले वैसे वो करके. बट आई थिंक यू ओनली डाइव इन टू सेव द सिचुएशन, you know. But as a producer, what is the most challenging thing जो आप लोग को फेस करना पड़ता है? चैलेंजिंग थिंग, पैसे थोड़े ज़्यादा मिले तो अच्छा है प्लेटफॉर्म से, और जो फाइनेंसर्स होते हैं, स्टार्स थोड़े कम पैसे ले तो अच्छा हो, लोग टाइम पे आ जाए तो बड़ी अच्छा हो, कंप्लेन लोग कम करे तो अच्छा हो. जब भी होता है कुछ अच्छा हो तो डायरेक्टर, बुरा करो तो प्रोड्यूसर, वो ज़रा थोड़ा कम हो जाए. और क्या है, I think challenges तो आती रहती है. मतलब you know, there is not a single day of a shoot which, even though it is supposed to be the most simple day, के challenge आए, but you know, like after a point of time you are like कि हाँ ठीक है यार. And then हम दोनों का ऐसा भी है, we like to up the game every time. So जो कर्मा कॉलिंग में, अगर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, there is a certain scale, okay. So we always wanted to be like, यार अब ऐसा ये रुचि ने सीन सोचा है or something, how can we make it better? Like how can we value add in a certain way and you know do those things. So बहुत बार मतलब वापस it backbites you only, you know, because वो challenging इतना हो जाता है. Correct. So yeah. But कैसे कन्विंस होते हो आपकी इस पे पैसे लगाने चाहिए हमें? बहुत आसानी से. कैसे? हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती. हमको बोला छोटी सी हेलीकॉप्टर, तो हम बड़ी सी हेलीकॉप्टर लेके आते हैं. क्योंकि हम लोग वी आर ऑल्सो इनहेरेंटली क्रिएटिव एंड वी आर ऑल्सो डायरेक्टर्स, राइट. सो वी अंडरस्टैंड द विजन, और हमको लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर ऑल्सो, हमको कोई ऐसा बड़ी ऐसे लैम्बोर्गिनी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है. सो हम सिनेमा में निछावर कर देते हैं सारा पैसा, विच इज़ वाई ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स एंड फाइनेंसर्स हैव फेथ इन पीपल लाइक अस, बिकॉज दे नो कि हम वी यूज द मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड I mean, and also why not, right? Like Ashutosh was saying, scale is so important. आज के आप OTTs में देखो, scale इतना missing है. Of course, budgets and all have come down considerably. But having said that, you know, if your life is about making cinema, then we should, like, even on Karma, अगर आप देखोगे, हम लोग को race course पे shooting कर रहे हैं. You would have seen the race course sequences, the helicopter sequences. It's impossible, right, to do that and to see the Kothari household. But then one side you are saying they are the Kotharis and we are matching it, like it's a show about the 0.001% ultra rich of Bombay. तो अगर उनकी कहानी है तो फिर हेलीकॉप्टर तो होगा ना. So I would like to ask सेट्स पे आप दोनों का एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि काफ़ी देखना भी एक टाइम पे वो लगता है यार इंटरेस्टिंग लगता है यार, मैंने सही जगह पे पैसे लगाए या नहीं लगाए. So the thing is, you know, मतलब ऐसे होता था कि sets used to be fun. Like see, if the production is well planned,
then the producer doesn't really have much to do on the set. Okay, so हम लोग, you know, like, so for us it used to be like a easy this thing. In fact, what happens is we invest a lot of time in prep. So that's where we are hardcore producers in terms of running different scenarios. It's like literally हम दोनों वो कहते रहते हैं कि फिल्म मेकिंग इज नॉट रॉकेट साइंस, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो और इट विल बी ईजियर. पीपल थिंक इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स्ड एंड यू नो जब भी रास्ते पे भी शूट हो रही होती है पीपल आर वेरी क्यूरियस कि यार ये लोग तुम लोग कैसे करते हो. बट हकीकत में इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू नो. इट्स जस्ट दैट यू आर रनिंग 300 पीपल टुगेदर और उनको एक ऑर्केस्ट्रल वे में साथ में सिंक्रोनाइज्ड होके एक सिम्फनी बजानी है. उसमें अगर कोई भी गलत सुर पकड़ लिया तो अपनी बच जाएगी, तो प्रोड्यूसर की ही बच जाती है. You know, so that's there. So I think sets used to be a lot of fun. In fact, we had a great time, you know, with all our actors and crew members. Like there used to be so much of a blast which we used to have, especially Raveena ma'am. So she's the most senior most person on the set. But उनके साथ हम लोग ने जो धमाल की है, मतलब you know, it was so much of a fun riot. You know, it was superb. Then bonding over food. You know, like it was so much fun. Like, you know, our lunches used to be like, होता ना कि where Ruchi then used to be like, अब चलो ठीक है, अब खत्म करते हैं, अब चलो जाते हैं, because all of us were like one family, hanging out together, you know, eating together, and you know, like, so दो ट्रेलर में बहुत serious और intense लगता है, but behind the scenes बहुत धमाल हो रही थी. Correct. That for you like it might be थोड़ा अलग, you know, देखना, सिर्फ देखना जाकर. नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग एडीज रहे हैं ना पहले. एक्टिंग तो मेरे करियर का सबसे छोटा जो सेगमेंट है वो एक्टिंग का है. सबसे बड़ा जो सेगमेंट रहा है वो इट्स डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग. बट ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग का हैवी लिफ्टिंग आशुतोष ही है. आई मीन एवरीथिंग इस शो का करता धरता आशुतोष है. पर फिर भी लाइक ही वाज सेइंग वेरी करेक्टली कि हमने प्लानिंग इतनी, हम लोग बोथ ऑफ अस आर वेरी, हम लोग फर्स्ट एडी रह चुके हैं, तो 166 एड्स की थी हमने. सो वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस कि आप प्रेप सही से कर लो. तो प्रोड्यूसर का काम खत्म हो जाता है. जैसे अगर आपने जैसे आपने प्लानिंग करके वैसे चल रहा है, तो सेट पे फ्रैंकली आप जाके मजे करते हो यार. अब रवीना मैम के साथ बैठे हो, कैसी है मैम, चाय कॉफी सब मजे में, कॉस्ट्यूम कैसे लग रहे हैं. और फिर बाकी भी हमारे जो एक्टर्स है, वरुण है, एमी, नम्रता वगैरह, सबके साथ बहुत मजे किए. गाने गाते थे हम लोग, मैं गाता था, आशुतोष थोड़ा सीरियस नुमा आदमी, आप समझ गए होंगे. तो मैं थोड़ी और मस्ती करता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी कम काम होता है उससे. या आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि प्रोड्यूसर का एक और पोस्ट प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में और प्री प्रोडक्शन अगर होता है होगा तो प्री प्रोडक्शन ऑफ कोर्स होता है. उसके बिना तो फिल्म ही नहीं बनेगी या शो ही नहीं बनेगा. उसमें क्या काम होता है प्रोड्यूसर्स का? So, okay, so if you know, like if I were to say this, कि firstly, you know, a filmmaker, okay, is मतलब like हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं कि ये एक डायरेक्टर है, एक ये प्रोड्यूसर है, ये एडिटर है, ये डीओपी है. सो आई थिंक डीओपी, एडिटर्स, इवन डायरेक्टर्स फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, डायरेक्टर्स almost till 70%, they all are technicians. You know, it's more technical things. A producer is operating from bringing it all together. Like अगर मैं उसको एकदम बेसिक टर्म्स में बोलूँ तो जैसे हम लोग बिल्डर का बोलते हैं कि यू नो ये किसने ये बिल्डिंग या स्टूडियो बनाया होगा और समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक ही इज पुट द ब्रिक एंड मोटर एंड खुद वो बेचारा यू नो तार और वो सब लगा रहा था वैसे वो करके. बट ही थॉट ऑफ इट, यू नो, ही थॉट ऑफ द डिजाइन along with the best architect, the best designer to come up with it, you know. So producer का prep में बहुत involvement होता है, because prep में आप लोगों को शामिल करते हो. You get the right minds together. So first is where you've identified a story. You know, it could be the director's vision, it could be the story writer's vision. Then now to take that to the next level, which is okay, who are the experts I'm gonna need to make this? And that is where the producer's role comes in. The second challenge when it comes, and most of the time it is there, is then how do you fit this in this budgetary box? Okay. Because आपका vision इतना है, फिर budget हमेशा usually ऐसे होता है. Seldom are those days के वहाँ पे budget ऐसा होता है और vision इतना छोटा होता है. मतलब I think those are the lucky producers, you know, in that way. And then prep जब हो जाता है, you review it, and आप उसको review करते हो आपके experience से. So Tahir and I have been very blessed, you know, that we've got to work on, like, you know, some amazing production houses. Like we've been blessed to work with, like, say,
producers like Karan Johar. We've got to see the legacy of, you know, Yash Johar जो छोड़ के गए थे, you know, seen work closely with Apurva, you know, during our first AD and second unit directing days, and also we've come up with an ecosystem of saying वो जो होता है ना कि यार we all need to do and behave in a certain way like this, you know, कि ये एक hybrid model हो जाता है, you know, because we are first generation filmmakers. So that's there, and then shooting जब हो रही होती है तब you are only looking at it कि भाई सब सही तो जा रहा है ना, you are like NSG commandos कि when really something happens and it is out of control is when you will step in. Post also, it's like where you'll get into finally how it's all coming together, and that's where your music contribution, all those things of getting the right people, and then of course, you know, you have experts who will, and you let them also do it. बेसिकली प्रोड्यूसर बाप होता है यूनिट का। एग्जैक्टली मैं वही आने वाली वो थी कि खाना जस्ट पीना नॉट जो भी दैट होता है कि वो करता पैसा है। लग गया बैठ जाओ आराम से। पैसा लगाना तो सबसे पैसा last लगाना चीज़ तो है। एक्चुअली आजकल का प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाता है, तो द थिंग है लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है, प्रोड्यूसर वो नहीं होता जो पैसा लगाता है, दैट्स नॉट द प्रोड्यूसर। वो दर्शकों को हम बता दे, पैसा जो लगाता है उसको या तो प्रेजेंटर कहते हैं या तो प्लेटफॉर्म होता है और अ फाइनेंसर होता है। प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाता है। वो जमाना था जब वो लोग खेत बेच बेच के इधर खोसला साहब आके बनाते थे पिक्चर, वो टाइम खत्म हो Briefcase में गया। आते थे। ब्रीफ केस में लेके गनी बैग में आते थे, वो नहीं होता। बट एक्चुअली दिस इज अ इंफॉर्मेटिव टॉपिक क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है ये चीज। प्रोड्यूसर नहीं लगाते पैसे, कई जिनके पास पैसे, पर क्यों लगाएगा कोई भी अपने पैसे? बिकॉज मनी इज अनदर एस्पेक्ट, उसकी एक्सपर्टीज अलग है। प्रोड्यूसर का मतलब पैसा लगाना नहीं है। प्रोड्यूसर का काम है, जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपको टॉफी खिलाते हैं, आपको हॉलीडे पे ले जाते हैं। प्रोड्यूसर वो होता है, वो कोई डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर जो उसके पास आता है, वो सिलेक्ट करता है कि चल अब तू मेरा बच्चा है, ये स्क्रिप्ट मेरा बच्चा है, चल मैं तुझे पालूंगा पोसूंगा, तुझे बड़ा करूंगा, रुक जा, पैसे कहाँ से लाऊंगा वो तेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं लेके आता हूँ पैसे, और फिर मैं उस बच्चे को बड़ा करूंगा। वो प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर के बगैर कोई, इसीलिए कहते हैं ना एक अच्छा प्रोड्यूसर, जैसे एज एन एक्टर मुझे कोई पूछता है, हम पहले पूछते हैं भाई डायरेक्टर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर खराब है तो गए काम से। अब कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो या कितना भी अच्छा कैमरामैन क्यों ना हो या कितने भी अच्छे एक्टर्स क्यों ना हो, अगर मान लीजिए उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर ने नहीं बना के दिया, यू नो, सो ऑल देयर एफर्ट्स विल गो डाउन द ड्रेन। एंड ये जो आपने भी जो कहा कि यू नो इट्स दैट थिंग कि यू नो कि आई हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आई वांट टू मेक फिल्म्स, आई वांट टू मेक अ शो, आई वांट टू डू दिस। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो वो सोचते हैं कि मैं डाल दूंगा वो हो जाएगा, एंड यू नो उसके बाद दे डोंट हैव अ फेवरेबल एक्सपीरियंस, जिससे क्या हो जाता है, देन द फिल्म इंडस्ट्री गेट्स लेबल्ड like we are saying this now because we've been first generation filmmakers in that way, so we've started from ground zero. हम लोग ने मतलब यू नो शुरुआत भी ऐसे वो की, तो उसमें जब भी कुछ लोगों को जब मिलते भी थे या तो बोलते यार तुम ये फिल्म वाले ना यार ऐसे ऑल ऑफ इट, हम लोग तो जब लोकेशंस पे भी जाते हैं, अच्छे लोकेशंस पे जाते हैं, एंड यू नो दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल वी फील यार कि इसका इतना अच्छा खूबसूरत घर है, सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट. And like you know, in Karma Calling. Yeah, like you have to set examples ना, we can't just be कि इसके बाद कोई शूटिंग करने ही नहीं देगा आपको. ऐसे कर्मा कॉलिंग में हमने काफी किया ऐसे, हमने सारी जगह जहाँ भी गए साफ सुथरा रखा, रेस को उसको भी स्वच्छ रखा, स्वच्छ. How it is for you, Tahir, कि as an actor being working in the same production house of yours? कुछ नहीं, ये लोग कास्ट तो करते नहीं है मुझे, तो क्या बात करूँ मैं भी. जब भी बोलता हूँ मुझे रोल दे दो तो सब, पर एडिशन कर्मा बड़े उम्दा एक्टर्सों को कास्ट किया गया है. वरुण सूद अपना भाई है, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, पीयूष, रचित, मसी, ऑल फैंटास्टिक एक्टर्स, सो आई एम नॉट फीलिंग सो बैड. बट या इट इज ऑल्सो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभार प्रोड्यूस डायरेक्ट, और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी कर ही लेते हैं यहाँ वहाँ, तो 3 काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पर अभी इनको कहा है मैंने, थोड़ा अगले वाले में प्लीज चुपचाप कास्ट कर लेना. But how you guys came up with the Karma Calling? Karma Calling. केसी कॉलेज ना, हम लोग केसी कॉलेज से, केसी तो केसी से वो क्या होता है, कर्मा कॉलिंग, तो बोला केसी कर्मा कॉलिंग. केसी वैसे वो करके नहीं यार, वो कर्मा उस लड़की का नाम कर्मा है Karma Talwar. शो में, हमारी जो हीरोइन है. Yes. तो अभी तो हो गया, जब लिख रहे थे तभी तो ऐसा कैसा हमने सोचा ऐसा कुछ कूल लगेगा. जैसे अपना केसी का कैंटीन का नाम था कूल कैफेटेरिया, विद अ केसी कर्मा कॉलिंग. नो, इट्स अ मार्केटिंग थिंग. एंड ऑल्सो वो उन्होंने स्टडी की, हम लोग ने जब नाम सोचा तो उनको बड़ा अच्छा लगा नाम, तो लगा
I hope you guys like it too. यस और कुछ बताना चाहते हो आप कर्मा के बारे में हमारे फैंस को, हमारे मतलब हमारे चैनल के फैंस को? बस इतना बताना आपके चाहेंगे कि fans बड़ा ही रोमांचक शो है और इसलिए नहीं क्योंकि हमने बनाया, हम आप कभी भी देखोगे जो चीज़ें हम बनाते हैं बहुत ही मनोरंजन होता है उसमें, तो प्लीज़ देखिएगा। और 26 जनवरी को रिलीज़ हो रहा है इस जनवरी को ही, प्लीज़ देखिएगा। इंस्टाग्राम पे बताइएगा, कहीं पे भी बताइएगा, इजी टू गेट इन टच विद अस एंड विल बी वेरी हैप्पी इफ यू वॉच्ड इट। ताहिर आपने दो दो घड़ी क्यों पहन रखी है? एक मेरा दिल है, एक मेरा दिमाग है। Thank you so much Thank guys you. for joining with us, you know. Thank you. It was It's so a informative. Thank you, Yes. Jaya. It's absolute pleasure. We love you too. Thank you so much.